Hello everyone, welcome back in our channel. This is the subject transportation engineering in which we deal about unit third, that is bridge engineering. Okay, in engineering we read about or study about 3.2, that is component parts of a bridge. If we talk about the component parts of a bridge, then we have a number of topic which has to be study, and some topics are taught by me, that is plan and sectional elevation, different terminology such as effective span, clear span, economical span, waterways, afflux, scored, HFL, etc., freeboard. And last lecture we conclude, we bind up the foundation part, the functions of foundations, and what are the types of foundation used in our bridge engineering, in our track bridge, you can say. But this lecture is fully related to the piers. What are the functions of piers? What are the requirements of piers? And also, what are the types of piers we will discuss in this session. This is our 24th lecture on transportation engineering. With the help of last 23 video or lectures, we bind up each and every aspects, each and every points, each and every important topic of transportation engineering, unit 1, unit 3 and unit 1, 2 and unit 3 continuously. After unit 3, last unit is remaining, that is tunnel engineering. In tunnel engineering, what are the definition and what are the terms which are used, which are important for tunnel engineering, we will discuss later on. But before we jump in our today's topic, that is piers, functions, requirements or types, we will discuss about SBT syllabus. What are the SBT syllabus says? That 3.1, 2, 3 and 4, site selection, component parts, permanent and temporary bridge, and inspection of and maintenance of a bridge. Okay, these are important part of transportation engineering because of the number related to these unit. Bridge engineering is 26, a much and more number gaining unit, मार्क्स गेनिंग यूनिट. ओके, ठीक है. ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का तीसरा यूनिट जो कि ब्रिज इंजीनियरिंग के नाम से जाना जा रहा है, उसका हम लोग दूसरा भाग इन द सेंस कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ अ ब्रिज के बारे में जानकारी ले रहे थे. अगर लास्ट लेक्चर की बात करें तो हम लोग फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं, किन किन जगह यूज हो रहा है फाउंडेशन, ठीक है ना, उसका मोटिव क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लिए थे. ये हमारा 24वां वीडियो है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर. कुल 23 वीडियो के माध्यम से हम लोग, पिछले 23 वीडियो के माध्यम से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के एक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को, एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिक्र कर रहे हैं और जिक्र कर चुके हैं. किन्हीं को अगर कोई दिक्कत है तो वो पिछले लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं, राइट. तो आज का लेक्चर पूरा डिपेंड है, पूरा रिलेट है. किसको रिलेट कर रहा है? पियर्स को, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ पियर, टाइप्स ऑफ पियर्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ पियर्स एक्सेट्रा, राइट. हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. एक्चुअली क्या है, क्योंकि हर एक टर्म रिलेटेड टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक टर्म आपका एग्जाम से रिलेट कर रहा है. और एग्जाम से रिलेट मतलब कि आपका नंबर बढ़ाने का. और ये जो यूनिट है, तीसरा यूनिट, ये अकेला ऐसा यूनिट है जो 26 मार्क्स कैरी कर रहा है. बहुत ज़्यादा होता है 26 मार्क्स एज कम्पेयर टू फोर्थ यूनिट. फोर्थ यूनिट कैरीज 14 मार्क्स, लगभग दो गुना, 2 टाइम्स 14 इंटू 2 28, और ये 26 गेन कर रहा है. इसलिए इंपॉर्टेंट बढ़ जा रहा है. इसलिए हम लोग आराम से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे हर एक लेक्चर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. हम लोग अब टॉपिक पे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज ब्रिज पियर.
एक बार पढ़ लेते हैं कि ब्रिज पियर क्या होता है एक्चुअली में। ब्रिज पियर सपोर्ट द स्पान्स of the bridge and transfer the loads from superstructure to the foundation. Piers should be strong enough to take the vertical load and horizontal force. Its main function is to transfer the load from the bridge superstructure to the foundation. Pier are usually compression elements of the bridge या of a bridge. क्या कह रहा है ये, इन तीनों अगर पॉइंट का अगर हम हिंदी में चर्चा करें तो ब्रिज का जो पियर है वो सपोर्ट करता है, सपोर्टिव स्पान है, और ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है लोड को कहाँ से कहाँ तक, सुपर स्ट्रक्चर से फाउंडेशन पे। अभी पिछले लेक्चर में हम लोग फाउंडेशन की बात किए थे, ठीक है ना, हार्ड स्ट्रटा, सब बेस वगैरह पे बात किए थे। अब उसके ऊपर जो है वो पियर है और वो लोड ट्रांसफ़र कर रहा है कहाँ पे, फाउंडेशन पे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये स्ट्रांग होता है, पियर शुड बी स्ट्रांग इनफ। क्यों स्ट्रांग कहलाता होता है ये, क्योंकि इससे वर्टिकल लोड और हॉरिजेंटल फोर्स को भी सहना हो रहा होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनाता है। इट्स मेन फंक्शन, अभी अभी हम बात करें इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसफ़र कर रहा होता है लोड को कहाँ से कहाँ तक, सुपर स्ट्रक्चर से फाउंडेशन तक, ठीक है। और ये अमूमन कंप्रेशन एलिमेंट होता है। कंप्रेशन एलिमेंट क्या होता है पहले हम जान लेते हैं। कंप्रेशन एलिमेंट वो होता है जो जिस पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा तो वैसा एलिमेंट को कंप्रेशन एलिमेंट बोल सकते हैं। ऊपर से क्या हो रहा है, ब्रिज का जितना सारा भार हो रहा है वो लग रहा होता है उस पर, ठीक है, तो इसीलिए हम उस पर कंप्रेशन, टेंसाइल नहीं बोल रहे। टेंसाइल मतलब तनाव, खिंचाव नहीं होता है उसमें, दबाव होता है, ठीक है ना, टेंशन नहीं होता है, कंप्रेशन होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर टाइप्स की बात करें, किसकी, पियर्स की अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप ऑफ पियर्स टू बी यूज्ड इन द ब्रिज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ब्रिज, सबसॉइल कंडीशंस एज वेल एज प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। मतलब ये जो ब्रिज पियर्स के जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करता है किस पे, किस टाइप का हमारा ब्रिज है, किस चीज़ के लिए बनाया गया है, हैवी लोड के लिए, इजी लोड के लिए, मॉडरेट लोड के लिए, नॉर्मल लोड के लिए, लो लोड के लिए, है ना, वो तो बात हो गई। और हमारा जो ब्रिज जिस पे बन रहा है, जहाँ पे बन रहा है, वहाँ का सॉइल का स्ट्रेंथ क्या है, सब सॉइल कंडीशन क्या जानकारी दे रहा है, सब सॉइल, ठीक है ना। तो इस वाले प्रोसीजर पे ही अडॉप्ट किया जाता है कि किस टाइप का हमको पियर चाहिए। अगर पियर्स की बात करें तो ये डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक सॉलिड और एक ओपन, सॉलिड पियर्स और एक ओपन पियर्स। तो सॉलिड और ओपन क्या क्या होता है हम आगे देखते हैं। पहले तो हम सॉलिड की बात करेंगे। तो सॉलिड की अगर बात करें तो these piers have solid and impermeable structure. The generally used material used for the construction of these type of piers are brick, stone masonry, concrete और RCC etc. सॉलिड पियर में यूज होने वाला सामान एक तो सॉलिड होता है और दूसरा इम्परमेबल, ऐसा नहीं कि पानी इस पार से उस पार हो जाए। और इसमें मटेरियल जो यूज होता है वो या तो ब्रिक, या तो स्टोन, या तो कॉन्क्रीचुअल होगा, या तो कंक्रीट तो होगा लेकिन आरसीसी वाला एटसेट्रा। ये सब चीज़ों से बनाया जाता है कौन सा, पियर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब सॉलिड पियर्स को भी दो तरीकों से बांट दिया गया है। पहला सॉलिड मेसनरी पियर और दूसरा सॉलिड आरसीसी पियर, ठीक है। जिस तरह कॉलम वगैरह बनता होता है, ठीक है ना, आरसीसी, और एक क्या होता है, दीवार वगैरह बन रहा होता है, मेसनरी। आगे देखते हैं। अगर हम सॉलिड मेसनरी पियर की बात करें, सॉलिड मेसनरी पियर की बात करें तो मेसनरी पियर्स आर नॉर्मली प्रोवाइडेड इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स टू सपोर्ट द एंड्स ऑफ बीम्स. Once the length of wall becomes less than 3 times its thickness, it is called a pier or column.
रादर देन अ वॉल। अब देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, क्या बोलते हैं, टर्म बताया गया है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वंस द लेंथ ऑफ अ वॉल, जितना होता है वॉल का लेंथ मान लो, बिकम्स लेस, कम हो जाए, 3 times इट्स थिकनेस, 3 गुना इसका थिकनेस से, किसका, दीवार का अगर लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से कम हो जाए तो उस टाइप के दीवार को हम वॉल नहीं कहते हैं, जबकि हम उसको क्या कहते हैं, पियर कहते हैं या कॉलम कहते हैं। ठीक है, मान लो मोटाई कितना है इसका, 5 यूनिट। ठीक है, ठीक है, थिकनेस जो बोल रहे हैं 5 यूनिट। अगर उसका लेंथ 10 यूनिट है तो 3 टाइम्स से हो गया कम, 5 या 15 यूनिट होना चाहिए उसका लेंथ। ठीक है ना, लेकिन उसका कितना लेंथ है, 10 यूनिट, मतलब 15 यूनिट से कम है, 3 टाइम्स इट थिकनेस लेस देन। तो हम उस टाइप के वॉल को हम क्या बोलेंगे, पियर्स या कॉलम बोल सकते हैं। ठीक है, वॉल नहीं बोलेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपका, ये बखूबी दिखा रहा होगा आपका सॉलिड मैसनरी पियर। इसका जो थिकनेस है ना, उसका 3 गुना से इसका जो लंबाई है वो कम हो जाना है। और जैसे वैसा कंडीशन आया तो हम उसको वॉल नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, पियर बोलेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा था सॉलिड आरसीसी पियर। द सॉलिड पियर्स विच आर कंस्ट्रक्टेड विद द reinforcement are called RCC pier. These piers generally rectangular in cross section and are generally used where the height of the pier are more and the solid masonry pier. मतलब इस टाइप के मैसनरी को, सॉरी, इस टाइप के पियर को, सॉलिड आरसीसी पियर को हम तब यूज करते हैं जहाँ पे सॉलिड मैसनरी पियर का जो हाइट है उससे बहुत ही ज़्यादा हाइट वाला हमको पियर करना है, पियर्स डालना है। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है। ये देखो, सॉलिड आरसीसी पियर। राइट, ये जो स्क्रीन पे आपका दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे डैशबोर्ड पे, ये देखो कितने ऊंचाई पर है। अब आप बोलोगे कैसे देखें, बाजू वाले पेड़ पौधे को देखो और इस वाले पोर्शन को देखो ब्रिज के। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक फिगर है सॉलिड आरसीसी पियर। दूसरा है ओपन पियर्स। ठीक है, द पियर विच आर ओपन ऑल्सो अलाउज द वाटर टू पास थ्रू द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ओपन पियर्स। ओपन पियर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। मतलब जो ओपन पियर है या होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, वाटर का को भी पास करा रहा होता है थ्रू द स्ट्रक्चर के से वाटर को भी पास करा रहा होता है। ओपन पियर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। फर्स्ट वन सिलेंड्रिकल, सेकंड वन कॉलम, थर्ड वन टेरेस्ट्रियल पियर या टेरेस्ट्रियल बेंट या पाइल बेंट। इन इसके भी अलावा भी हो सकता है, लेकिन इन नामों से भी जाना जाता है। राइट, ओपन पियर्स को आगे हम जानेंगे। तो उसका एग्जाम्पल है सिलेंड्रिकल पियर्स। द पियर विच आर कंस्ट्रक्टेड विद द माइल्ड स्टील से बना हुआ रहता है या कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है और कंक्रीट फिल किया जाता है। ठीक है ना, इसको सिलेंड्रिकल पियर्स बोलते हैं। इसका यूज क्या करता है, ब्रिज हैविंग मॉडरेट हाइट, कम हाइट के लिए, मॉडरेट हाइट बीच वाला हाइट के लिए करते हैं। समटाइम्स हॉरिजेंटल एंड डायगोनली स्टील ब्रेसिंग आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर एडिशनल स्टेबिलिटी। अलग स्टेबिलिटी के लिए हम लोग इसमें स्टील भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये देखो इस तरह का है सिलेंड्रिकल, है ना, ऊपर जाके क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, सिलेंड्रिकल टाइप का गोल देखे हो कहीं ना कहीं। अगला है कॉलम बेंट। अ रिजिड फ्रेम, column bends, a rigid frame commonly made of reinforced concrete or steel that supports a vertical load and is placed transverse to the length of the structure.
Bent are commonly used to support beams and girder. And bent is to support frame forming part of abutment. abutment आगे पढ़ेंगे हम लोग. मेंबर, वर्टिकल मेंबर बेंट आर कॉलम और पाइल्स. ये देखो इस तरह का आप देखे होगे. फिगर से ज़्यादा आप समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली में कॉलम बेंट क्या होता है. देखो लग रहा है कि पुल को, ब्रिज को उसके ऊपर रख दिया गया, राइट. उस तरह को कॉलम बेंट बोलते हैं. एक है ट्रेस्टल पियर्स या ट्रेस्टल बेंट. इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉलम विथ बेंट कैप at the top. As per the latest recommendation, the hinges may also be provided. It is generally used for flyovers and elevated roads. These are suitable for bridges where water current is slow and river bed is sufficiently firm. नीचे है देखो इस टाइप का, देखे होगे आप, ठीक है ना. ट्रेस्टल बेंट. पाइल पियर्स एंड पाइल बेंट. पाइल बेंट देखो, पाइल बेंट ये, ठीक है ना. छोटे 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 पिलर कॉलम है और उसके ऊपर में एक स्लैब तो नहीं, बीम के जैसा दिया हुआ है, ठीक है. पाइल बेंट. टिपिकल फ्रेम पियर्स देखो ये होता है. इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है. दीज आर द लेटेस्ट टाइप्स ऑफ पियर्स यूज्ड इन द ब्रिज. इन दीज पियर्स द इफेक्टिव स्पान लेंथ फॉर गर्डर गेट रिड्यूस. देखो, और इसीलिए क्या होता है, इकोनॉमिकल भी हो जाता है. जितना स्पान है वो कम है. देखो लगता है कि वहाँ पे क्या हो गया, कैंटिलीवर बीम का काम कर रहा है कि जितना जगह है उससे भी कम जगह लेके बड़ा पुल बना रहा है. ऊपर में जो सरफेस होगा उतना ही होगा, लेकिन नीचे का जो ये है वो छोटा हो जाता है, तो कम खपत लगता है, राइट. तो ये तो था हम लोगों का आज का टॉपिक जो कि था पियर्स. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अबटमेंट के बारे में जान रहे होंगे, ठीक है ना. अबटमेंट के बारे में जान रहे होंगे, विंग वॉल्स के बारे में जान रहे होंगे, बियरिंग अप्रोचेज और ब्रिज फ्लोरिंग के बारे में. टिल दैट, थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस. थैंक यू सो मच.